So today I will tell you about the marks, okay, how the exam test will be. As you all know, your section A is your reading portion. You know that now, your section A is the reading portion, which will be of 30 marks. And section B, that is your writing portion. It is also of 30 marks. This much you know. Then your section C, which is grammar, which usually comes from 15 marks. Right? The last section, that is your section D, this is literature one. This will be 60, 60 to 75, rest is 25 marks. This is your section, 4 sections. So total is 100 marks. Right? Usually your half yearly exams and all will be of 100 marks. Is it there or not? It's a 100 marks now? Say yes or no. Yeah, but for your half yearly, now we will be putting a 50 marks. Okay, this will be a 50 marks, out of which this 30 will be 15 marks, reading section will be there. Then this 30 will be converted to 15 marks, writing skill. Then this will be a 5 marks, your grammar. Then marks. 30 plus 40, 10 marks or 15 marks for your literature portions. This grammar I will take for 5 and 10 marks, the rest mark will be for your literature. So this will be your pattern for English half-yearly test. So be prepared for that, out of which reading skill, that will be common, that I will give you. You have to read that paragraph and answer the questions. Okay? As per the board pattern. Then writing skill. In writing skill, there will be an essay, a letter, notice. Most of the things I have given in your assignment also now. Assignment also I have given some of the other topics. So that will also come. Maybe that portions will be coming as your uh, essay. Okay. Then literature, like notice will be there. One letter will be there and I will distribute the marks. Okay. For that, one day I will put the class that where I can explain you how to write, when to write, about what to write. So, about writing skill, we will talk later. Then is your grammar portion. In grammar portion, that 3 chapters are there. Noun case, first one is phrases classes and the third chapter. Including these third 3 chapters, what all exercises you have been done and the definition or the types, whatever it has been mentioned in your notes. As I taught you, that all you have to review. Okay? तो पूरा तुमको देखना है कि पूरे 3 चैप्टर में क्या आ रहे हैं, क्या क्या है उसके एक्सरसाइजेस, ये सबको देख के आपको ये ग्रामर में तुम्हारे 10 या 15 मार्क्स का आएगा, सॉरी 5 या 10 मार्क्स का आएगा. ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें रीराइट करने के लिए होगा. जो भी एक्सरसाइजेस तुम्हारे बुक के अंदर वो 3 चैप्टर में उसी में से आएगा, आउट नहीं आएगा कुछ भी अभी इस हाफ ईयरली के लिए. ठीक है. देन your D section. For your D section, you will be getting question answers, phrases, everything from chapter 1 to 10, excluding 8 chapter. 8 chapter नहीं आएगा, वो अपने सिलेबस में से कट हो गया है. What is culture?
तो उसको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट मतलब चैप्टर्स तुम्हारे 10 चैप्टर यानी कि 9 चैप्टर पूरे आएंगे। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एनी डाउट्स पीपल आर हैविंग? एनी डाउट्स? Regarding the portion, you people are not having any doubts now? It's clear for you that what all sections will be there. You are used to this. Regarding the sections, you know that your A section reading will be there, B section writing will be there, and C section grammar, and D section literature is almost there for you, right? So I have told you how the markings is also. To see that any portions which left for you in the literature to be cleared. If you have any doubts, you can ask me and I will clear that. कोई डाउट्स है तुम्हें? और हमने पाई ऑफ द टास्क का चैप्टर किया था कल। पूरा हमारा पाई ऑफ दैट कंप्लीट हो गया है। क्यों नहीं अटेंड किया? जिसने अटेंड नहीं किया उसके लिए क्या किया जाए? Shall I say the summary of the pie and the task chapter once again? Respond dear. मैं बोलूं उसकी समरी पाई और ताज जो तुम्हारे 12 चैप्टर है उसकी समरी बताओ। ठीक है। पाई और ताज जो है तो पेरिस के दो लड़कों के बारे में बताया गया है जो बहुत गरीब थे। दे वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर। उनके पास पैसे नहीं थे कपड़े खरीदने के लिए, ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ था। ठंड के मारे बहुत मतलब ठंड में बहुत परेशान हो रहे थे वो लोग। तो वो लोग आते आते मतलब वहां पर जियाना और पायरी है उनका नाम। एक के मतलब इतना उड़ता हुआ जला जला जा रहा था, मतलब ही वाज नॉट सिटिंग स्टेबल। सो द अदर पर्सन टोल्ड कि मतलब तुम एक जगह बैठो तो सही, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तो कहता है कि मेरे ट्यूनिक में इतने सारे होल्स हैं और मेरे पेट में भी इतना गड़बड़ी, मतलब भूख से मैं मर रहा हूँ कि मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं एक जगह स्टिल हो जाऊंगा तो मैं बर्फ बन जाऊंगा, इतनी ठंड लग रही है मुझे। वहां पर उन्होंने जियान कहता है तुम्हारे कपड़े के कितने होल्स है ये सब सोचने के लिए सुनने के लिए मेरे पे इंटरेस्ट नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द होल्स इन योर ट्यूनिक, बट आई एम थिंकिंग हाउ टू लिव, हाउ टू गेट फूड टू सर्वाइव। सो उन्होंने प्लान बोला कि मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके भीख मांगते हैं, दरवाजे खटखटाते, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तुम अपना लक को देखो, दूसरे साइड में दूसरे कॉलोनी से शुरू करो, दूसरे स्ट्रीट से शुरू करो। अब वहां पर करने के लिए जाते हैं तभी उन्होंने बोला कि पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे बोलते हैं। तो उन्होंने वो डायलॉग सब कुछ देखा कि मतलब बोलते हैं ना भगवान के नाम पे दे दे वैसा कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में उन्होंने बोला इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंजल्स, ऐसे करके उन्होंने डायलॉग्स बोले। सब प्रैक्टिस करके वो लोग गए। शुरू में उन्होंने क्या किया था, गॉल्टियर की दुकान थी उनके सामने, वहां से पायरी जाता है। जब उसने जाके कटकटाया डायलॉग बोले तो पायरी को गॉल्टियर कहता है यहाँ पर कुछ नहीं है और मैं बिजी भी हूँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब यहाँ कुछ बना वना नहीं है। उसको लपटा देता है, मतलब वापस कर देता है। एंड ही वॉज मूविंग फ्रॉम देयर। और वो जाके क्या कर रहा था, विंडो से उसने पीप किया था अंदर को, मतलब चोरी छुपे अंदर को देखने लग गया था। और उसी टाइम जियान चलते चलते इनके यहाँ पर आके कटकटाता। और वहां पर मैरियन यानी कि गॉल्टियर की वाइफ जो है वो आके दरवाजा खोलती है और वो कहती है कि मेरे पास मतलब कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है, तो मैंने कुछ खाना भी नहीं बना, मेरे पास कुछ नहीं है कि जो मैं तुम्हें दे सकूं, तुम आगे चलते बनो। आफ्टर दैट जियान आके वो बेंच में बैठ जाता है जहां पर वो बैठा हुआ था। फायरी भी आके बैठ जाता है और बताता है ऐसी ऐसी बातें हैं। उसी टाइम उन्होंने देखा कि गॉल्टियर रशली कहीं जा रहा है और मैरियन से बात कर रहा था। तो उसके बाद पायरी आके बैठकर बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हें पाई चाहिए तुम्हारा पेट भरने के लिए, तो मैं जैसे करूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। एंड ही सजेस्टेड जियान टू गो एंड knock the door as Marion comes.
You have to lift her hand and kiss on her hand. क्योंकि वो मैसेंजर के तौर पे गॉल्टियर उनको भेज के जाता था कि वो हमें बाद में पता चलता है, लेकिन ऐसे ऐसे बात बताता है। वहां जाता है, जियान ने जाके दरवाजा खटखटाया, तो वहां पर मैरियन आई, तो मतलब एकदम से उन्होंने किस किया, किस करके वहां पर बोला कि मेरे को मैसेंजर के तौर पे भेजा गया है गॉल्टियर ने कि केक पाई लेके आने के लिए बोला है, पाई लेके आने के लिए बोला है बोल के वो जाता है, लेके आता है, तो वो लोग के खाते हैं। बाद में स्टोरी पता चलती है कि मतलब गॉल्टियर ने मैरियो से जो हरी में जा रहा था पीछे मुड़ के क्या बात किया था, बात ये किया था कि मुझे आज मेयर को फीड देना है, तो आप एक काम करना, एल्पाई जो रखी है उसको दे देना। तो कहती है मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि कौन किसको भेज रहे हो, तो कहता है कि मैं एक मैसेंजर को भेजूंगा जो तुम्हारे हाथ में किस करेगा, जिससे तुम समझ जाना कि वो मेरे वजह से भेजा हुआ मैसेंजर है। तो ऐसा है, लेकिन unfortunately what happens in between, Gautier comes home to take the pie by itself, and he starts asking to Marion about the elf. And she was telling, I have already given to your messenger whom you have sent. But he refused for that. I have not given any messenger, how you are saying. And he was scolding her, he was shouting at her, saying that तुमने भूख लगी तो तुमने खा लिया होगा, है ना, या फिर तुमने छुपा रहे हो, तुम गेम खेल रहे हो क्या है, वगैरह वगैरह करके वहां पर लड़ाई चल रही थी। ये कुछ जाने बगैर जियाना पायरे ने अलग से प्लान बनाया, पायरे ने ऑलरेडी सुन लिया था, तो उसने क्या किया, बोला कि वहां पर अभी तुम्हारा पाई तो खा लिया है तुमने। मतलब लोगों के अंदर होता है ना, कुछ पहले जरूरत की चीज चाहिए होती है, अब जरूरत पूरी हो गई है, उनको एल पाई मिला, उनका स्टमक फिल हो गया, अब उनको जूस पीने का है, मतलब टाट चाहिए उनको, है ना। अब उसने देखा अब उसको भी लेना है, तो उसके लिए उन्होंने ट्रिक बना के वो दोबारा से भेजते हैं कि बोलते हैं कि मैसेंजर के तौर पे मैं आया हूँ, वो एल पाई बहुत पसंद आया तो टाट के लिए बोला है, इसलिए गॉल्टी ने मुझे भेजा है। तो गौटिया चोरी छुपी वहां खड़े होकर सुन रहा था अंदर। जब उसने सुना, उसके बाद जैसे वो टाट लेने के लिए गया बोल के ऐसे दिखाया, और उसके हाथ में पकड़ के उसको जो भी गया था उसको गौटिया ने अच्छा धमकाया, मारा। फिर पूछा तो कहानी पूरी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, तो आपकी बात हम लोगों ने सुन ली थी, हमें बहुत भूख लग रही थी, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे भी वो पटाट भी लेके, मतलब दे मैनेज टू, कैसे उन्होंने एल्पाई ले भी लिया, मार भी खाया, मतलब वहां से भी वो रफा दफा, क्योंकि गॉल्टियर जो था वो मतलब जाने माना था, उसकी पहचान बहुत है, देखो मेयर को डेट करने जा रहा था। So they could have gained punishment, but they managed to get rid of the problem. This was the story of El Pai and the Tart. Okay. ये दो लड़कों के बारे में थी जिन्होंने झूठ बोल के अपने पेट को भरने के लिए उन्होंने क्या किया था, एल्पाई गॉल्टियर उसकी वाइफ को मतलब बेवकूफ बना के cheated them, and they had got the pie for their satisfaction. Okay, understood? Okay, so yeah, I hope that you have understood the pattern of the question paper, also how much marks you will be getting out, how much is been distributed, how much marks is distributed in each of the sections also. Okay, now I've explained you the summary of the chapter 12th also, Pi and the Tar. Now I'll send you the question answers also. Yesterday I have sent you the PDF of the chapter. Go through it, those who are not having books, and I will send you the question answers also. Complete your notebook, and I will send you the assignments also, which you have to complete and give it to me while you come for your test. Okay, when you are coming for your exam, you have to carry your assignments also and submit it to me. Plus, you have to bring your parents' permission letter. I hope it has been sent in group. You have to take the printout, put the signature of your parents, make your parents to put sign, and then you bring it. Don't put your parents' signature by yourself. Okay? Study well. If you have any doubts, in the meantime, you can contact me and get your doubts clear. Okay. So tomorrow I will be taking class for your writing section, that how to write, what all will be the topics and all. I will clear it off. So be online, come to the class properly. Today also only 7 children are there. Out of 20, only 7 are being joined. And in your class, there are more than 60 students. Okay.
So talk to them also and do your classes well and study well. Okay, children, for today, I'll wind up the class. Yeah, yeah, yeah. Have a nice day. Have a nice day. Bye.